کرو. جی جی جزاک اللہ مفتی صاحب مجھے اجازت اوے دینا چپ صرف کر 60 جا تو سیکنڈ چپ کر جا یار عامر بھائی عامر بھائی 60 عامر سیکنڈ بھائی نے چپ کرا دو. مفتی بھائی ان لوگوں کو پرابلم یہی ہے، میری جماعت کو، یہ جو میری ایکس جماعت تھی اس کو بھی میرے ساتھ پرابلم یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے منہ پہ لات مار کے چلی گئی، صدر کو بتا دیا، اپنے گھر والوں کو بتا دیا، یہ بھی پرواہ نہیں کی. میرا صدر مجھے کہتا ہے تم ٹک ٹاک پہ جانا چھوڑ دو، تمہارے گھر والوں کو میں تم سے ملواؤں گا. میں نے وہ بھی بات نہ مانی. میں ٹک ٹاک پہ آ کے الان ڈنکے کی چوٹ پہ ان کے منہ پہ ہر ایک طرح کی چپیڑ مارتی ہوں، ہر ایک طرح کی بات کرتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جس دن ٹک ٹاک پہ آ کے ان سے بات نہ کر لوں، میں جو ہے نا سمجھتی ہوں کہ میرے دن میں کمی رہ گئی ہے. میں آتی ہوں، آتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی. ان کا بلے کوئی بڑے کا بڑا باپ بھی مجھے آ کے ڈرا نہیں سکتا. مجھے اتنی ڈفرنٹ کالوں سے، دھمکیوں کی کالیں آتی ہیں نمبروں سے، میں پھر بھی نہیں ڈری. ان کی اندر پرابلم یہی ہے کہ یہ عورت ڈر نہیں رہی، یہ عورت وہ ذہنی مفلوج نہیں رہی جو کہ پہلے ہم میں رہتے ہوئے تھی. اس کا ذہن، اس کے اندر جرت ایسی کس طرح آ گئی؟ تو جاہلوں اور قادیانیوں لانتیوں، یہ جرت اسلام کی طاقت ہے یہ، اور یہ اسلام کی طاقت ہے جب صرف آپ اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور اپنے جو ہے نا تعلقات صرف اللہ سے درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رزق سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر آپ پپو جیسے اور کسی بھی قادیانی مخنثوں سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا سب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کون ہوتے ہیں بیچ میں آپ کو کچھ دینے والے یا لینے والے؟ ان کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا بات. میں نہ ڈرتی تھی نہ میں ڈرتی ہوں. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں، جس نے اپنے رحمی رشتوں، اپنی والدہ کا سیکریفائس کر لیا، اپنے بھائی بہنوں کو نہ ملنا گوارا کر لیا، اس کو یہ لوگ کیسے ڈرائیں گے؟ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ. ایک ٹکے کی مجھے ریگریٹ نہیں ہے، ایک ٹکے کا مجھے افسوس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ٹکے کا. تو مجھے یہ لوگ ڈرا نہیں سکتے مفتی صاحب. بس میں نے اس کے منہ پہ وہی ایک بات آپ سے کہلوانی تھی کہ میں جائز طریقے سے جب ایک بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر دنیا میں صرف آپ کا ایک میں نے پوائنٹ آف ویو لینا تھا. پر یہ آپ بلیو کریں کہ میرا دل اللہ کے فضل سے بالکل بھی چھوٹا نہیں ہے. میں ان کی ناسوں میں وہ دھونی دوں گی کہ جو ہے نا ان کی آنکھوں سے بھی پانی نکلے گا. اور جو ہے نا میں کیا کہوں، اصل میں ان کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے نا، دیکھیں بات اتنی ہے کہ میں یو کے میں رہتی ہوں، میں فل ٹائم جاب کرتی ہوں. ٹھیک ہے، بات اتنی ہے کہ عورت جو ہوتی ہے نا، جرت مند عورت جو شریف، اب مسز راشد ڈون ہے، وہ لہکتی چہکتی مردوں سے بات کرتی ہیں، میرا وہ شیوا نہیں ہے. میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرتی ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ ان کی اوقات ان کو بتاتی ہوں. آپ یقین کریں، مجھے ابھی بھی پچھلے 2 دن پہلے ایک مجھے کال آئی ہے جس میں مجھے کہا گیا کہ ٹک ٹاک پہ جانا چھوڑ دو. کیوں چھوڑوں؟ میں اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ جس گند میں اتنی دیر بیٹھی رہی، اگر میری باتیں سننے کی وجہ بہن سے میرا مسئلہ شاید کوئی بندہ اس گند سے باہر نکل جائے، شاید کوئی نیچے بیٹھا ہوا قادیانی سن لے، اس کا دماغ کھل جائے، شاید وہ کوئی بات کر لے. میں اس کو اپنا فرض سمجھتی ہوں، جس طرح میں کھانا فرض سمجھتی ہوں، نماز پڑھنا فرض سمجھتی ہوں. میں ہر روز میں اتنی بزی ہوتی ہوں، میں پھر بھی ہر روز 1.5-2 گھنٹے ٹک ٹاک پہ آ کے کہیں نہ کہیں گزارتی ہوں، صرف یہ بتانے کے لیے شاید کسی کے کان میں کوئی بات پڑ جائے اور شاید سب کو پتا چلے. میرا دل کرتا ہے کہ میں پمفلٹ چھپاؤں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ہر گھر میں اپنے ہاتھ سے دے کے آؤں. قادیانیوں کے کس گند میں بیٹھے ہوئے ہو، کیچڑ کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، کیچڑ کے اندر نکل کے دیکھو، تم لوگوں کو وہ سکون ملے گا. میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے، جو میری زندگی میں اب سکون ہے، مجھے جتنا خدا کے اوپر اب توکل ہوا ہے ساری زندگی کبھی پہلے نہیں تھا. ساری زندگی کا میں ہر چیز کا ثبوت دے سکتی ہوں، مجھے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں، پر میں اتنا کہوں گی کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک دجال تھا، ایک کذاب تھا. اس نے سب کو اس ٹائم کیچڑ کے ڈھیر میں بٹھایا ہوا ہے. مرزا مسرور جو ہے، معذرت کے ساتھ، مرزا مسرور اس قدر لعنتی انسان ہے کہ وہ اپنے باہر 2400 گھنٹے، ہر 4 گھنٹے کے بعد خداموں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں. اس کو خدا کے اوپر ادھر بلٹ پروف گاڑیوں میں وہ گھومتا ہے،
उसको खुदा के ऊपर इतना भी तवक्कल नहीं कि खुदा उसको बचा लेगा। कौन सी अलाई जमात का वो बैठा हुआ मेंबर। तो पप्पू मलिक, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम क्या तुम्हारे जैसे करोड़ों आ जाएं, मुझे तब भी नहीं रोक सकते। अगर रोक के दिखा सकते ना तो मुझे बताओ, खुला चैलेंज करती हूँ मैं तुम्हें, जाओ। आज पप्पू मलिक तजदीद ईमान करेगा। पप्पू मलिक आज तजदीद ईमान करन लगे क्योंकि इन्हें एक मुसलमान भैन दे बातन दे उत्ते शक करके उन्हें अपने आप नू स्लिपरी ग्राउंड पे ले जाके खड़ा करता है। पप्पू मलिक एजेंट करार दे रही है मुसलमान से नहीं करेगी तजदीद ईमान। गल तो सुन ले चाचा, गल तो सुन ले। जिस तरह उन्होंने मिर्जे कादियानी ते लानत पाई है ना, तू भी उस कज़ाब दजाल ते लानत पा के तजदीद ईमान कर ले कोई जल्दी जल्दी, ताकि उन्होंने सारे भैन भरावां नूं यकीन आ जाए तू है मुसलमान ही है। तू तेरा उंज दिमाग खराब है थोड़ा जिहा ना, तैनूं दवाई दी लोड़ रहिंदी गायब गए। ਇਹ ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਕਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਆਪਨੂੰ ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਤਨ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਬੱਬੂ। ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਰਾੜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਦਦ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮਦਦ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਕਰ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲਾਨਤ ਪਾਲੇ ਚੰਗੀ ਭਰ ਕੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ, ਲਾਨਤ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂ। भाई इस तरह बोले कि मैं लानत डालता हूँ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर, मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर, मिर्जा गुलाम के ऊपर मैं मेरे पीछे रिपीट करे, मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर। अच्छा अमर भाई तो एक कीड़ा था और ये ऊपर ट्रू मुस्लिम की जो आईडी है ना, ये भी पक्का कादियानी एजेंट है और ये भी वही है। मैं गल पता क्या है, नहीं रॉन्ग नंबर भाई, आप मेरे पीछे पढ़ लें, मैं माफी दे दूंगी आपको, मैं आपको माफी दे दूंगी, आप मेरे पीछे पढ़ लें। दो टके के लोगों को अपना ईमान साबित करती है मेरी जूती। मैं इस आप ईमान आप कादियानी और आपका साथी आ गया, लानत पाना उस डिमांड पे मरण करने लगे हुन 1000 ਵਾਰੀ ਲੰਦ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਮਰਨ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2-2 ਟਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। मैं तो मेरी गल सुन यार अमर भाई बंदे का बच्चा बन ओए 2 टके लिया पुत्रा लंटिया मुफ्ती साहब, औरत नाल गल करन दी। मुफ्ती भाई अब अपने ऊपर बात आई है तो कह रहा है मैं क्यों साबित करूं, फिर मेरे ऊपर जिस तरह मेरी इज्जत करने तो उसी तरह सिस्टर की इज्जत करके उन्होंने पीछे पीछे जो लफ्ज़ ना कहे ने ना, कह दे कि मैं मिर्जे कादियानी कज़ाब दजाल ते 1000 बारी अगे लानत पाई है। कोई मसला में बैठा हुआ कीड़ा था और सब कादियानी गलाजत में डूबे हुए। अल्लाह के नबी की 2 हदीस है मेरी बहन के जो मार चुके हैं। मेरी बात सुने, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे ना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चाहने मैं अल्लाह के नबी की बात मानूं या आपकी मानूं? किया फिर आपने मेरे ऊपर शक क्यों किया? मैंने आपसे माफी मांग ली है ना, आपने तो मुझे यकीनन कहा अपने ऊपर बात आपने मुझे कहा मैं उनसे रिश्वत लेता हूं। माफी मांग ली है, अच्छा तो कितना माफी मांग ली, मैं अप्रिशिएट करना। आपने माफी मांगी है कि मैं उनका एजेंट हूं। आपने मुझे कैटेगोरिकली, मैंने तो कहा मुझे शक है, क्या पता मैं भी मेरा शक कीता है ओदी तो माफी मांग ली है। अच्छा मैं क्या तजदीद ईमान कर मैं तजदीद ईमान अमर भाई 2-2 टके दे लोगां वास्ते मैं तजदीद ईमान नहीं 2-2 टके दा तू जज़ाक अल्लाह। मैं तजदीद ईमान मैं नहीं कर सकता ना, मैं डिमांड ना मैं किसी को नंबर भाई आप चले जाएं क्योंकि आपका एक और एजेंट आ गया कादियानी ऊपर, ट्रू मुस्लिम आ गया। अमर भाई मैं म्यूट करना, ट्रू मुस्लिम ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। वल्लाही ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਾਵਾਰੀ ਕਰਨਾ। लेकिन अमर भाई ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕਾदियानी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਤੇ ਜਦੀਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਦੀਦ ਈਮਾਨ ਕਰਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। शाह साहब चलो शाह साहब पढ़ो। हेलो मेरी गल, तू सिस्टर को माफी मांग के मेरा दिल खुश किया है, हूं तो मेरा एक बार और दिल खुश कर दे। मिर्जे कादियानी कज़ाब दे जाल ते लंत पा दे, चल बस गल मुकाइए तो फिर गिले तितर ना गल करिए।
चल पुट माइक और आपने इसको माफ नहीं किया क्योंकि ये बहुत दफा ऐसी बात कर चुका है। नहीं आइंदा नहीं करन लगा, आइंदा नहीं करन लगा। मैं देखिया मुंडा माड़ा नहीं है, सिर्फ बोलन दा बस नहीं सुआ, बोलन लगे पता नहीं चलता। आमिर भाई जरा बड़ा करो मैनू। अच्छा एक सेकंड यार, मैं ड्राइव करना पिया, कितने ने मॉडरेटर कर दो जरा। वैसे पप्पू भाई इतनी मुश्किल बात नहीं थी, आपने मेरे पीछे पीछे ही पढ़ना था। ये जो ट्रू मुस्लिम है ना, ये भी एजेंट है कादियानी। अच्छा, और ये ग्रे आईडी वाला भी है एजेंट कादियानी। ये एक मिनट सिस्टर, अस्सलाम और वालेकुम। अच्छा जी, भाई ट्रू क्या मिस्टर, हाल है आपका? ठीक ठाक है? मैं ठीक ठाक। अच्छा हाँ, ट्रू मुस्लिम, ये आपका कमेंट है? क्या लिखा हुआ है? हाँ ये जरा देखें क्या लिखा हुआ है। नहीं ये मेरा नहीं, एडिट किया हुआ है ये। ट्रू मुस्लिम ऊपर था, देखे ना आईडी के क्या लिखा है। इसने मेरे चल जिदा है ना ओदे ते लानत पाओ दी नस्ल ते ओदे प्यो ते ओदी औलाद। आमिर भाई बात सुने, इसका तो मुल्क दुश्मनी भी यहाँ हो गई है। मैंने नहीं नजर आ रहा की लिखा, मैंने और ये नजर पाकिस्तानी भी है या नहीं? ये लिखा हुआ जी एडिट की हुई वीडियो है, पाकिस्तान ने अकेले में बैठ के वीडियो बनाई है फिर एडिट कर दी। नहीं वैसे आमिर भाई अगर ये ट्रू मुस्लिम है फॉर एग्जांपल मान लिया अपू तो उनके साथ पंगा लेने लगा, एक बंदे ने गल एक टाइम पाकिस्तान ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਚ ਆਮਰ ਭਾਈ? ਵੈਸੇ मेरी गल मुक गई, मैनू गल सुनन ते देना पहला होई की गल है। ये लिखिया एक मिनट, वो कहंदा मेरा कमेंट ही नहीं है। नहीं मुझे पढ़ने दो, मैं मुनाफिक नहीं हूँ दूसरे लोगों की तरह। अगर मेरा कमेंट हुआ तो मैं उस पे ऊपर डट के कहूंगा मेरा है। दूसरे लोगों की मतलब पप्पू मलकार मुनाफिक नहीं हो। नहीं पप्पू मनफ तो ग्रे की बात भी है, वो तो मुनाफिक नहीं है, वो तो सच की बात करता है। जो भी है मेरी उससे कभी बात भी नहीं हुई। अच्छा ट्रू मुस्लिम, ये पढ़ के अच्छी तरह दासे कमेंट तेरा पहले ये जो आजकल जूम ये इन जो करें इसको। मैं आपको मैं इसको बैकग्राउंड दिखाता हूँ। आजकल ये जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में हुई है, उसके ऊपर लोग वीडियोस, और ये बंदा है ही जो है ना, ये सहाफ़ी है जिसने उधर बैठ के उनसे बात की हुई है। मैं जानता हूँ उसको, उसकी और वीडियोस भी मौजूद हैं। और ये ट्रू मुस्लिम साहब कह रहे हैं कि इस बंदे ने झूठ किया हुआ, ये खुद से एडिट करके उसने उनको ना बड़ा वो सुनाई है इंडियंस को। अच्छा कि ये भाई तुम लोग कमेंट तो पढ़ने दो ना, कमेंट्री ना शुरू कर दिया करो ना। सवाल पूछते हो तो ये कमेंट पढ़ के रखो ना, जवाब सुनने की हिम्मत भी रखा करो ना, या सवाल ही ना रखा करो आप दूसरों के सामने। कमेंट यार मैं बिजी होना है मुफ्ती साहब, जरा एडिट की वीडियो है, पाकिस्तानी ने अकेले में बैठ के वीडियो बनाई है फिर एडिट कर दी है। जी ये मेरा ही कमेंट है, मैंने किया था, याद है मुझे। वो जो पाकिस्तानी बात सुने ना, उससे एक इंडियन जर्नलिस्ट किसी से सवाल पूछ रहा था, तो पाकिस्तानी था ये कोई शख्स जिसके वीडियो के ऊपर मैंने कमेंट किया। उसने क्या किया, अकेले में बैठ के उस कुछ अपनी मर्जी से ना बातें की इंडिया के खिलाफ। तो फिर अकेला ही बैठ के कहते अब मैं बोलूँगा आपने नहीं बोलना, दो तीन बातें की, मैं बोलूँगा आपने नहीं बोलना। उनकी जो वीडियो थी, जिसको जो जर्नलिस्ट था और उसके साथ जो लोग थे, उनकी जो वीडियो थी वो बार बार रीप्ले हो रही थी। मतलब उसको दोबारा चला देता था ना अपनी बात को लंबा खींचने के लिए। तो वो जो शख्स था वो असल में अपने व्यूज़ लेने के लिए कि देखो मैं भी एक ना मकाम रखता हूँ, इंडियन मीडिया जो है वो मुझसे बातचीत करता है और सियासत के ऊपर बात करता है, जंग के ऊपर बात करता है, वो शख्स झूठा था। उसकी आईडी के ऊपर देखें, उसने जो हिंदी में नाम लिखा हुआ था, उसने अपना नाम भी गलत लिखा हुआ था उस पाकिस्तानी ने। और दूसरी बात, जो बाकी लोग उधर बैठे हुए थे तजिया नगार, उनका जो नाम लिखा था और उस पाकिस्तानी का नाम लिखा था, पाकिस्तानी का जो नाम लिखा था वो ज़्यादा जो है ना एक शौक था, तो जो दूसरे नाम थे लोगों के उनके वो ब्लर थे। और चौथी बात, तो उसने पाकिस्तानी झंडा लगाया हुआ था, वो फेक झंडा उसने वीडियो के ऊपर लगाया हुआ था। फिर इसी तरह उसने इंडियन झंडा, जो इंडियन जर्नलिस्ट थे उसके ऊपर लगाया हुआ था। तो वो ये शो करना चाह रहा था कि मैं देखे इंडियन मीडिया के साथ बात कर रहा हूँ, तो ये मुझे फेक चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने ये कमेंट किया था। मैंने कहा था ओरिजिनल बोलो, जो आप हो। आपके पास क्या प्रूफ है कि ये उसकी वीडियो बता रही है, उसके बातें बता रही है, आपने बोला नहीं, आपने बोला मेरी नहीं। बात सुने ना, वो बंदा तो ऐसा साफी है यार। आप कैसे कह सकते हैं कि उसका ये नहीं है? होगा, लेकिन वो जो वीडियो लगाई है उसने एडिट करके लगाई है और कोई इंडियन मीडिया ने उससे राब्ता नहीं किया। बाकी इंटरव्यू आपने देखे? नहीं, बाकी वीडियो नहीं, इंटरव्यू मैंने नहीं देखे, लेकिन आप उसकी प्रोफाइल में जाके दिखा दे कि उस इंडियन जर्नलिस्ट ने उस साफी का नाम लेके पकारा हो कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आप उसकी बाकी वीडियो देखें, उसने बिल्कुल प्रॉपर उसका नाम लेके
उन्होंने उसको पुकारा है, और उसकी बाकी वीडियो देखें, उसकी प्रोफाइल चेक करें और उसकी वीडियोस, उसके व्यू और उसके फॉलोअर्स चेक करें, ठीक है। तो क्या आप समझते हैं कि एक आप ही बहुत चालाक है और आपने कहा है कि वो फेक है और बाकी लोग जो इधर बैठे हुए वो सारे जेल बैठे हुए हैं कि उसकी वीडियो पे नहीं, पोस्ट उसके कर रहे नीचे हैं? और भी कमेंट थे, वो सब मैंने और भी कमेंट पढ़े हैं, नीचे लिखा हुआ था एडिट सर, किए हुए। मैंने वो वीडियो देखी है, वो बिल्कुल पाकिस्तानी न्यूज़ ARY ने भी उस वीडियो को ब्रेक किया है, और उसका बिल्कुल पाकिस्तानी वो बंदा- ARY ने भी किया है, 92 ने भी किया है, और जियो ने भी वो अपनी बाकायदा टीवी पर उन्होंने खबर दिया कि देखें हमारा एक जर्नलिस्ट यूट्यूबर वो उनके साथ किस लहजे में बात कर रहा है। अच्छा, उस ये झूठ वाली बात ही कोई अच्छा नहीं। देखें टू मिस्टम, देखें आप कादियानियों की तो वो करते थे, साइड लेते थे, और अभी आप मुल्क दुश्मनी पर भी उतर आए हैं यार, ये क्या बात है? लानत भेजता हूं उस शख्स के ऊपर जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करे, पाकिस्तानी हो। देखें आप अपना कमेंट पाकिस्तान देखें, में रहे, देखें और मेरी बात सुने, दुश्मनी की वजह से अगर कोई मेरी बात करे सुने। इस तरह की बात, तो मैं उसके मेरी ऊपर बात- लानत भेजता हूँ। आप सभी लोग 73 लोग कहो गुड आमीन। हो गया, आप लानत भेजते हैं, चलें मुझे, और मिर्जा कादियानी पे भी लानत भेजते हैं। नहीं देखिए, आप ये उछल कूद कर रहे हैं। पहले आपने अब सवाल देखें किया था, इधर मुझे आपने एक पकड़ने की तरफ कोशिश दम की। लानत भेज दी और दूसरी तरफ पहले नहीं आपने भेज रहे। मुझे यहाँ सियासी माहौल में आप बना रहे थे, हाँ मुझे आप बदनाम कर रहे थे, मुझे फंसाने की नहीं बदनाम नहीं कर रहा, आप वाकई देखें हाँ, मेरी अब बात आपकी सुनो। दाल नहीं गली तो ਇਹਦਾ फसल आप- ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ਼ੂ ਸਿਆਸੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਖਾਸਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਨਤੀ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ये- ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ। आमिर भाई जिंदाबाद, आमिर भाई जिंदाबाद, ये बात है। ये ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਜ਼ਮ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਓ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਓ, ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਮਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਓ, ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਰੋਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਲ ਜੰਗਲੀ ਨੇ ਚਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਹਤੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੇ ਤਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟੀ ਭਈਆ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ। ਜਵਾਬ ਚੁੱਪ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝਟਪਟ ਲਾਨਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, क्या तू अल्लाह दे नबी दे खासा खत्मे नबूवत वास्ते उस झूठे मदईए नबूवत ते लानत नहीं पा सकदा? अगर तू नबी पाक दा ईमान रखदा होवें ते क्या तैनू तकलीफ हुंदी ओहदे ते लानत पांदे आ? या ते अपनी जात वाते भी ना पा ते कह मैं ते भाई लान है ही नहीं, मैं ते लानत पांदा ही नहीं, मैं ते बड़ी गुरेज करना जी, मैं मोमन हां, मैं बड़ा अच्छा नेक। और जदों तू अपनी जात वाते एक सेकंड नहीं लाया लानत पांदे, क्या तू नबी पाक दे खासा खत्मे नबूवत वाते लानत नहीं पांदा उस झूठे मदईए नबूवत ते? कह दे कि तेनू अपनी जात जिहड़ी ओ अगे वे, नबी पाक तू अगे वे, कह दे तू गिला तितर नहीं है, बल्कि तू सारा ही गिला है, सिर्फ उत्ते तेरे पार नहीं गिले, तू सारा ही गिला भिजे आ। गलीज लोग कोई इत्थे एक गिला तितर पे फिरदा, उन्हें आख्या तंद नहीं टुट्टी ताणी विगड़ी है, तुसीं आंदे हो एक पप्पू मलक, इत्थे दर्जना पप्पू मलक लगे फिरदे ने। मेरा माइक से मूड पता है ਇਹ सवाल ਸੋਸ਼ਲ मेरे को जवाब नहीं सुनना। ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਉਹ ਦੇਈ ਨਾ ਜਵਾਬ, ਉਹ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ आप मेरे पीछे ਵਾਰੀ जवाब ਆਂਦੀ ਤੇ ਦੇਈ ਨਾ ਜਵਾਬ, ਉਹ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ ਲੈਂਦੇ, ये मुल्क दुश्मन साबित हो गया, इसको नीचे उतार दें। ਵਾਰੀ ਤੇ ਆ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ये मैं सारे मुजाहिदीन को भेजूंगा, इसका तो मैं एक एक हरकत पे नजर रखता हूँ, ये मैं सब मुजाहिदीन को भेजूंगा, जरा इसको पूरे टिकटॉक पे इसको एक्सपोज करें प्लीज। या ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਨਾ ਭੇਜਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭੇਜੀਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਪੀ ਰਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਰੇ ਸ਼ਾਜ਼ ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਨਤ ਅੱਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਬੀਨ? ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕਾਜ਼ਬੀਨ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਦਾ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕਰ ਗੱਲ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਨਤ ਭੇਜਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ 30 ਨੇ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ, ਤੇ ਉਹ ਕਜ਼ਾਬ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਨੇ, ਲਾਨਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ इतना बड़ा दावा किया। नबी होना एक बहुत बड़ा ज़र्फ है, एक बहुत बड़ा जड़ा ना मकाम होता है।
ਤੇ ਝੂਠੇ ਉਹ ਮਕਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे भी, मिर्जा गुलाम कादियानी पे भी भेजो ना, फिर नहीं पता चलेगा। देखिए मोहतरमा पहले मैं मिर्जा गुलाम कादियानी पे भी भेजो ना। अटैक कर रही थी, इस तरह पंगे लेना ये अच्छी बात नहीं है ना। मैंने आपको मेरी बुलाया बात सुने, मैं आपको कह रही हूं कि ओए, मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर भी करे ना। बहुत तमीज नाल हेलो सिस्टर दे बारे की बकवास करन लगे हैं? मैं की कर रहा हूँ, मैं जब आया इधर तो वो बार बार मेरा ये तेरी घर मां भैन कोई नहीं, तेरी घर मां को नहीं भैन को नहीं, ओनू आखिए तेरी मां पंगे लैंदी लोकां नाल, तेरी घर आपकी पंगे माँ लैंदी नहीं है, उसको इधर आके क्यों नहीं एक बिठाते? शर्म गंदे आदमी। नहीं अपनी माँ बहन को उच्चे बिठा दो। ओए ओए गिल्ले तितर लानती यार ये सारे मुसलमान सोशल मीडिया ये जितने भी जो हैं मोहब्बे वतन सब देख लें, इसने स्पेसिफिक एक वर्ड लिखा है इस मैसेज में कि पाकिस्तानी ने, ज़रा गौर करें। ये तो लिख सकता था ना, वैसे तो वो बंदा साफिया में जानता हूँ उसको, उसकी इसने ना प्रोफाइल देखी है ना कुछ, और इसने ये कमेंट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी में लिखा है। बिजी होना है। मुफ्ती साहब मॉडरेटर है ना कि मैं नहीं? ना मॉडरेटर नहीं ना है। अली सवाल पूछना है। आमिर भाई मैं केड़े टाइम दी ਤੁਹਾਡੇ घंटा हो गया आप शूटर भाई, इजाजत अली मुफ्ती साहब मॉडरेटर ना। इजाजत जी, जी। शार्प शूटर भाई के ये भी तो कादियानियत ही है ना कि वो पाकिस्तान से बड़ी नफरत करते हैं, ये भी एक सबूत है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये है ना, करते हैं। और ये है, मेरी बात सुने, ये है, ये कौन कहता नहीं है, ये है। अभी देखें अमर भाई ये आपसे जो जो सवाल पूछ रहे हैं, ये जो एक मिनट पप्पू एक मिनट, ये जो स्पेसिफिक अभी कह रहा है ना, झूठे तमाम झूठे मदयानी नबूवत पे लानत है, ये कह रहा है ना, तो मिर्जा कादियानी को तो ये सच्चा समझता है, इसलिए ये नहीं कह रहा, मैंने तो उसका कहा नाम था नहीं ले। मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर बोले ना कि वो कज़ाब है, झूठा है, फ्रॉडी है, धोखेबाज है। मेरी बहन आपने क्वेश्चन कर दिया, उन्होंने जवाब दे दिया, मेरा वो चला गया बंदा। अच्छा मेरी बात सुन ले आमिर भाई, चला नहीं गया, हमने उसको नीचे उतारा। एक मिनट से पहले मैंने एक अब छोटी सी मुफ्ती बात साहब करनी को बड़ा कर दें, इमरान मुफ्ती यार साहब 20 को बड़ा सेकंड कर और दे ही दियो। हेलो 20 सेकंड की हो गया नहीं? मैं बात सिस्टर ये कर रहा था कि पप्पू मलिक आपको कह रहा था कि आपको बरात पर आने की क्या जरूरत है, हम अपनी बहन बेटियों को बरात पर नहीं लेकर आते ये वो। तो पप्पू मलिक आप अपनी बीवी को अंग्रेजों के पास काम करने के लिए क्यों भेजते हैं भाई? उसको घर बिठाएं। मलिक खुद इमरान तुम भाई, घर बैठे हुए आप इस जाहिल से ये खुद क्वेश्चन तुम की उम्मीद है। अपनी सर्वा बीवी की हाथ की कमाई खा रहे हो सिस्टर भी काम करती हैं, जॉब करती हैं, पूछ नहीं, मुफ्ती साहब बैठे हैं, क्या जॉब करना गुनाह है? तू तो पैसे लफजे नहीं मलक इमरान है, ऐसे खत्मे ने बोला को पैसा देंदा नहीं अमर भाई मेरी गल सुनो ना, पैसे लभने उत्थे टोरदे ने मामा भैन। अमर भाई सुन लो, पहली गल नहीं सारा दिन आमिर भाई ये ज्ञान दे रहा था जो आमिर भाई मेरी भी सुन लो। मैं बिजी होने लगा, मैंने नहीं ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਟੋਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣ ਵੀ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅਮਰ ਭਾਈ हमने सर्वा सिस्टर को ना देखा हुआ है, जॉब कर दी उनकी आवाज चौथा कर पप्पू मलिक तन ऐसा 5 घंटे सुना, 2 मिनट मैं नहीं सुन सकता। जे तू पैसे लभन उत्थे ते बीवियां ने टोरी दे। हम सर्वा सिस्टर को उनकी शक्ल नहीं जानते, उनकी आवाज सुनी हुई है, हम उनको कुछ भी नहीं जानते। अमर भाई पहले वो एक खत्म नबूवत का काम कर रही है, मेरी बीवी के लिए जॉब कर रही है, मेरे जॉब की जॉब कर रही है। अमर भाई ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੀ बीवी ਦੇ ਬਾਰੇ। पर भाई कहते ने बाबियां दा पुजारी कोई गल सिर्फ आमिर भाई ये देख लें, ये मुझे बात नहीं करने दे रहा, देख लें म्यूट कर इसको दो यार। आमिर भाई ये अपनी बीवी को अंग्रेजों के सामने भेजकर काम करवाता है और सारा दिन इसने अलाउंस ले रहा है क्योंकि ये ज़हनी बीमार है। इसने हुकूमत से वहां पर वो के अल्लाह को हाजिर नाज़र, और ये अपनी अल्लाह की कसम बीवी को भेजता है और सारा दिन ये घर रहता है, ये काम अमर नहीं भाई करता। खुदा की और अमर भाई होने दे तू एक मुजाहिदा खत्म नबूवत की जिद्दी अल्लाह ईमान ताला लाओ, इन्हें उनको जज़ाए खैर दे। वो आती हैं, हमारी बहन है, हमारी सिस्टर है, वो आती हैं काम के लिए, एक अच्छा आप कहना फरीज़ा समझकर वो आती हैं इस्लाम के लिए। लेकिन इस बंदे को शर्म नहीं आ रहा कि ये अंग्रेजों के पास अपनी बीवी को भेजकर ये उनसे काम करवाता है और एक खत्म नबूवत की मुजाहिदा को ਚੱਲ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ। ਅਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਰਚੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਲਾਣਾ ਪਵੇ ਲਾ ਵੀ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ। ਅਲੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਅਲੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਖਾਮ ਖਾ ਮਸਲੇ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਿੱਛੋਂ।
السلام علیکم. اللہ اکبر. اچھا بھائی یہ بات کر رہے تھے پاکستان میں جو ابھی جنگی ماحول بنا ہوا ہے تو پاکستان کی مخالفت کے اوپر بات ہو رہی تھی. یہاں پر تھوڑی سی بات ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ایک دن پاکستان نے ٹوٹنا ہے اور ٹوٹ کے واپس بھارت کے اندر اور انڈیا کے اندر اس نے مکس ہونا ہے. یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے اور ان کی الفضل اخبار کے اندر بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے. وہ ایک لفظ یہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے. یعنی پاکستان جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس نے ایک دن ختم ہونا ہی ہونا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں کہ جنگی ماحول بنا ہوا ہے اور قادیانی لڈیاں اور بنگڑے ڈال رہے ہیں اور پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں. پورے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے حق کے اندر مسلمان بول رہے ہیں اور حتیٰ کہ انڈیا کے اندر کے جو مسلمان ہیں وہ پاکستان کے حق میں بول رہے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کے حق میں بول رہے ہیں. جبکہ جو مخالفت کے اندر جو پوسٹیں لگ رہی ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ قادیانیوں کی ہے اور قادیانی جو ہیں وہ مختلف پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں اور پاکستان کی افواج کو گالیاں دے رہے ہیں. اور یہاں پر لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر, اور ان لوگوں کا جو اصل چہرہ ہے یہ تو بڑی دیر کا ہمارے سامنے آ چکا ہوا ہے اور ابھی بھی یہ حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کے دشمن ہیں, مسلمانوں کے دشمن ہیں اور پاکستان کی سلامیت کے دشمن ہیں. یہ جو جنگ چھڑی ہے فلسطین کے اندر اور یہودی جو ہے وہ اسرائیلی مسلمانوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں, تو اس کے پیچھے بھی قادیانیوں کا بہت بڑا ایک کردار ہے. ہمارے مسلمانوں کی اکثریت نہیں جانتی کہ اسرائیل کے اندر قادیانیوں کا بہت بڑا مرکز قائم ہے. حیفا ایک علاقہ ہے اور یہ وہی علاقہ ہے کہ آج کل یہ جو حزب اللہ والے اور دوسری جو تنظیمیں ہیں وہ اٹیک کر رہی ہیں, تو ان کے اندر 3 بڑے شہروں کا ذکر موجود ہے, ان میں ایک حیفا بھی آ رہا ہے. تو حیفا کے اندر قادیانیوں کا بہت بڑا جو مرکز ہے وہ موجود ہے اور یہ اس کے رائٹ ہینڈ ہیں یہودیوں کے. یہودیوں آج سے کوئی 10 سال قبل کی رپورٹ ہے کہ اسرائیل کی فوج کے اندر 600 قادیانی لڑکے اور لڑکیاں یعنی شامل ہیں. یہ آج سے 10 سال قبل کی رپورٹ تھی, تو ابھی کتنے ہوں گے اس کا تو اندازہ بھی آپ لوگ نہیں کر سکتے. ابھی یہ جو اٹیک کر رہے ہیں, اٹیک کرنے والے وہ اصل میں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں وہ یہ قادیانی ہوتے ہیں. قادیانی ہیں جو کہ اسرائیل کی فوج کے اندر اور یہودیوں کی طرف سے ہو کر کے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں, مسلمانوں کے دشمن ہیں یہ. اور یہاں پہ ایک بات اور بھی بتانی ہے کہ پچھلے دنوں رپورٹ آئی تھی وہ نتن یاہو جو ہے ان کا بغیرت انسان, تو وہ کہہ رہا تھا دیکھو جی ہم تو بڑے مسلمانوں کے ہمدرد ہیں, ادھر اسرائیل کے اندر بڑی عبادت یعنی مسجدیں ہیں, بڑی مساجد ہے, بڑے مسلمان یہاں پر. تو وہ اصل میں وہ جس طرف اشارہ کر رہا تھا وہ عام بندوں کو نہیں پتا, وہ قادیانیوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا. کوئی ایک مسجد بھی کسی مسلمان کی وہاں پہ نہیں ہے, قادیانیوں کے عبادت خانے وہاں پہ بڑے ہیں. پورے اسرائیل کے اندر بہت عبادت خانے. اور وہ جو کہہ رہا تھا کہ مسلمان یہاں پہ ان کو آزادی ہے جو مرضی کرے, وہ اصل میں قادیانی ہے, قادیانیوں کو اجازت ہے. تو یہ قادیانی جو ہیں یہ ہندوؤں کے, ہندوستانیوں کے, مطلب یہ کہ انڈیا
गवर्नमेंट के और इसराइल यहूदियों के, ये राइट हैंड। तो हर इस्लाम मुखालफ के पीछे आपको कादियानी नजर आएगा। हर इस्लाम मुखालफत जब होगी उसके पीछे, चाहे वो आपके वतन की मुखालफत हो या इस्लाम आपके मजहब की मुखालफत हो, उसके पीछे आपको पीछे पर्दा कादियानी छुपा हुआ नजर आएगा। जी अभी बात कर लें, किसी और ने करनी है। बिल्कुल अपना जो है ना मुफ्ती साहब ARY पर और इस पर खबर आई थी कि उन्होंने 11 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया था जो इसराइल के लिए काम कर रहे थे और बड़े अरसे से कर रहे थे। तो उन्होंने पाकिस्तान में उनको अरेस्ट किया और अभी वो जेलों में है। जी बिल्कुल ऐसा ही है मलक साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। असल में ये तारीख से ताल्लुक़ रखती हैं ये चीज़ें, और हमारी कौम तारीख से बहुत कम आशना है। तारीख एक ऐसा आईना होती है कि जिसके अंदर जो अक़वामे आलम होती हैं वो अपने खदो खाल देखती हैं, और तारीख के ज़रिए ही पता चलता है कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो कम अज़ कम हमारी जो उम्मा मुसलमा है, इनको इन तारीख़ी हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत देना और इल्म देना, ये भी हमारे ऊपर ज़रूरी है कि इनको वक्तन फ़वक्तन हम बताते रहें कि असल मामलात क्या हैं। तो ये तारीख़ के वो गोशे हैं, और कादियानी तो नहीं ना इनका इकरार करेंगे, कादियानी इन चीज़ों को छुपाते हैं। अभी भी देख लें, आप इसका ज़िंदा सबूत देख लें कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ी है तो एक लफ्ज़ भी कादियानी खलीफा मिर्ज़ा मसरूर ने नहीं बोला। जब इसराइल और फ़लस्तीन की जंग छिड़ी, बड़े अरसे की छिड़ी है, एक लफ्ज़ नहीं उसने बोला। ये खुश होते हैं, ये लोग खुश होते हैं, ये चूंकि ये उनके अपने हैं, ये यहूदियों के अपने हैं, ये हिंदुओं के अपने हैं, एजेंट हैं ये लोग। तो ये कैसे बोल सकते हैं इनके खिलाफ? हो ही नहीं सकता। हम तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपनी अफवाज के ऊपर फ़ख्र है, अपनी मिल्लत के ऊपर फ़ख्र है, अपने दीन के ऊपर फ़ख्र है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, हमारी अफवाज को अल्लाह हिम्मत अता फरमाए, और इन कादियानियों को जो है ना गैरत और डूब मरने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, मैं ना अब थोड़ा सा जाना है, तो मुझे इजाज़त दें, काफ़ी गुफ्तगू हो गई है साहिबान। रब रखा जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।